Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to start our new lesson, which is lesson number 7, our body. Okay. So first of all, आप सभी ने, आप ध्यान से सुनिएगा, आप सभी ने अपना बॉडी देखा हुआ है. वी ऑल सी ईच अदर्स बॉडी ऑल्सो, एंड मैनी ऑफ द पार्ट्स वी नो ऑलरेडी, है ना. हमें बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के नेम ऑलरेडी वी नो इट, दैट व्हाट वी कॉल आर हेड, आर आईज, नोज, माउथ, है ना. सो देयर इन दिस लेसन वी आर लर्निंग अबाउट देम. ठीक है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंड हाउ वी आर ग्रोइंग, how we humans are actually growing. And you see that when we grow, जब हम grow करते हैं, when we grow some changes comes in our body, हमारे body में कुछ changes आते हैं. Okay, so this all you all have seen that, आपने देखा होगा that you are small in height, and your hairs are also small in length, maybe some of them. So our body isn't that, your body isn't grown that much. And when you will see your parents, जब आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, then you will find out that their body is grown. उनका body जो है that is completely grown. And also you will see they are long, they are tall in their height, है ना. You will see that they are wide, I mean to say their body is grown. So that is how we are going to learn in this lesson about our body. हम इस lesson में क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to learn about our body in this chapter. So here we have, I'm gonna read, and after my reading, ठीक है, जैसे ही मेरा reading finish होता है, you also have to read the lesson. So here is written body parts, BOD by body, PARTS, parts. Parts क्या होता है? Parts is a kind of a parts of something, है ना, जो उससे उसी का एक हिस्सा होता है, that we can say is called part. Our body has many parts. हमारा जो body है, our body has many parts. हमारे body में बहुत सारे parts हैं. All parts of the body work together. All parts of the body मतलब body के जो सारे parts हैं, they work together. Together का means क्या होता है? साथ में काम करना. Together means साथ में, ठीक है, unity में. So all the parts of the body work together to help us live. मतलब ये सारे body के parts एक साथ work करते हैं to help us live, हमें रहने के लिए, हमारा लाइफ के लिए या हमारे लाइफ के लिए. दे ऑल वर्क्स टुगेदर फॉर आवर लाइफ, हमारे लिए दे ऑल वर्क्स टुगेदर, वो सभी साथ में वर्क करते हैं. नाउ यू कैन सी हियर अ क्यूट लिटिल बेबी गर्ल, एंड द बुक हैज़ डिस्क्राइब्ड देयर बॉडी पार्ट्स. सो यू कैन फर्स्टली सी हर. सो फर्स्ट यू सी हर फेस. आप इसका सबसे पहले फेस देखते हैं, एंड देयर व्हाट यू सी इन हर फेस, देयर आर 2 eyes, nose, lips, it complete called mouth. When lips and teeth, tongue inside, it is called mouth, and this whole part is called face. ठीक है, mouth सिर्फ इतना part है, where we have teeth, lips, tongue and internal part. This part is only mouth, and this above part with the eyes and nose, ears is called face. इसको हम face बुलाएंगे, and this inner part is only called mouth. Now come downwards. So here is neck. ये क्या है हमारा? neck. We call this part neck. What we call this? neck. Then come little down. Here are these 2 shoulders. ये क्या है हमारे? shoulders हैं. And firstly in this face what we have? 2 eyes, nose, mouth. Here you can see this chin, there are ears, there are hair and head. Head is this part. Okay, then hairs and ears, chin, nose, mouth, eyes, eyebrows,
एंड दीज आर सम पार्ट्स नेम यू शुड नो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो द नेम्स ऑफ देम, यू शुड लर्न देयर स्पेलिंग्स ऑल्सो, ठीक है। देन वी विल कम लिटिल डाउन, देन देयर इज द नेक, ये पार्ट क्या है इसका, नेक। देन दीज पार्ट आर कॉल्ड शोल्डर्स, इनको हम क्या बुलाते हैं, शोल्डर्स, व्हाट वी कॉल दिस, शोल्डर्स, ये वाला पार्ट। देन वी कम लिटिल डाउन, देयर इज द चेस्ट, इसको हम क्या बुलाएंगे, चेस्ट। देन कम लिटिल डाउन, देयर इज स्टमक, व्हाट इज इट, स्टमक, इसको हम क्या बुलाएंगे, स्टमक, STOMACH, स्टमक। देन यू कैन सी हैंड्स, आपको यहाँ हैंड्स दिख रहे हैं, 2 hands are here, so hands, and this part is called elbow. You all have this part, all feel that the hand is of 2 parts, है ना, it looks like there are 2 parts in hand also. So from in the middle there is the elbow, this is forearm, and here you will see there are the fingers in your hand, है ना, this is wrist, there you have fingers, it is not shown here properly, but these are the fingers, okay. Then legs, there are 2 legs, this, and one more thing, that there is written foot, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, foot, and one word is feet, FEET, feet. So 2 words are there, foot and feet. When we are talking about two, then we say feet, okay, जब हम दोनों का बात कर रहे हैं, when we are talking about both the legs, then we say feet. When we are talking about only one, ठीक है, जब हम किसी एक का बात कर रहे हैं, then we say foot. Understood? Keep this thing in your mind. Now turn your page. So here in the next page, you will see that what the work of the part of the body, ठीक है, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या वर्क करते हैं। लेट्स सी हियर लेग्स। सो लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक एंड रन। लेग्स हेल्प अस टू स्टैंड, वॉक एंड रन। मतलब लेग्स हमारा क्या वर्क कर रहे हैं। सो लेग्स आर हेल्पिंग अस इन स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग। वी आर स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग ऑन आवर लेग्स। तो हम लेग्स पर क्या वर्क करते हैं। सो लेग्स help us to stand, walk and run. You can see in these two images that this one girl is running and running on her 2 legs, and there this girl is walking, she is walking on her 2 legs. Okay, now hands help us to write and hold things. Hands help us to write and hold things. Hold का means क्या होता है। You can see this pen and I am holding it in my hand. मैं इस पेन को होल्ड किया हुआ है in my hand. तो होल्ड करना मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ना। ठीक है, होल्ड करना मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ना। सो आई एम होल्डिंग वन पेन इन माई हैंड। ठीक है, सो हैंड्स हेल्प अस टू राइट। हैंड्स हमारे किस चीज़ में हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस टू राइट एंड होल्ड things. Understood? You can see in these 2 images there this one boy is writing something, and there in the second image one girl is holding a box, है ना, there one girl is holding a box. Now move forward. Here we have sense organs. What is it? Sense organs, SENSE, sense, ORGANS, organs. So sense organs, ठीक है। organs means होता है the part of our body, okay, जो हमारे बॉडी का पार्ट है, okay, उसी को हम organ बोलते हैं। a humans or any a living things body part is called organ। ठीक है, it's not the non living things part we say organs, only the living things पार्ट, लिविंग थिंग्स बॉडी पार्ट वी कॉल इट ऑर्गन्स। मतलब किसी लिविंग थिंग जो होती है उसके ही बॉडी पार्ट को हम एज ऑर्गन्स, ठीक है, एज ऑर्गन्स बोलते हैं, नॉट द नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है,
उसको हम पार्ट ही बोलेंगे, पार्ट ही डिस्क्राइब करेंगे। सो सेंस ऑर्गन्स, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड सेंस, ठीक है। सेंस क्या होता है, तो सेंस का एक मीन्स रहेगा आपके लिए, लाइक आप जैसे आपने एक हॉट कॉफ़ी आप पी रहे हैं इस समय, ठीक है, यू आर ड्रिंकिंग हॉट कॉफ़ी, सो यू आर फीलिंग इट, ठीक है, आपको फील हो रहा है दैट दिस कॉफ़ी इज़ हॉट। एंड इफ़ यू आर टेकिंग अ कोल्ड कॉफ़ी, ठीक है, आप कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं, कोल्ड कॉफ़ी ले रहे हैं, देन दैट टाइम यू आर फीलिंग दैट द कॉफ़ी इज़ कोल्ड, तो यू आर फीलिंग इट, क्या कर रहे हैं आप उसे फील कर रहे हैं, यू आर फीलिंग इट, यू आर फीलिंग इट, आप उसको जज करते हैं, आपने पहले फील किया दैट हाउ द थिंग इज़, कि वो कैसा है, एंड देन यू जज्ड इट, आपने उसको जज किया दैट व्हाट द थिंग इज़। सो दिस इज़ कॉल्ड सेंस, मतलब आप किसी चीज़ को देखते हैं, यू आर फीलिंग इट, यू आर जजिंग इट, सो दिस इज़ कॉल्ड सेंस, किसी चीज़ को फील करना, महसूस करना इज़ सेंस, ठीक है। सो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, इन आर बॉडी पार्ट्स देयर आर सम ऑर्गन्स विच इज़ कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, इन आर बॉडी देयर आर सम ऑर्गन्स विच इज़ कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स, मतलब हमारे बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको हम क्या बुलाते हैं, सेंस ऑर्गन्स बुलाते हैं, ठीक है। सो which part are they, I mean to say which organs are they whom we call sense organ? So here we have eyes, ears, nose, tongue and skin. EYES eyes, EARS ears, NOSE nose and TONGUE tongue and skin, SKIN skin. So eyes we all know where are the eyes, ठीक है, तो आपको eyes तो ऊपर ही दिख जाता है, ears also you know it very well, nose is also we all can see properly, then tongue is also you all can see, and then skin is our bodies, this skin you can see, this is the skin, okay. So these are the body parts that help to feel the world around us. Eyes, ears, nose, tongue and skin are the body parts that help us to feel the world, to feel the world around us, मतलब हमारे आसपास, in our surrounding what we have, these things we are feeling and we are using them accordingly, मतलब हमें जो भी कुछ things मिलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट व्हाट वी डू, वी टच इट, वी सी इट एंड वी फील इट, हम उसे क्या करते हैं, वी फील इट। जैसे आपको मैंने कुछ भी दिया, लाइक आई हैव गिवन यू two flowers, okay, 2 flowers I have given to you and one flower is smells very nice, one flower like rose, jasmine, some flowers they smells very nice and some flowers they don't have even smell, मतलब उनका कुछ smell नहीं है, ठीक है। सो आई हैव गिवन टू यू 2 flowers एंड 1 flower स्मेल वेरी नाइस एंड 1 flower डजंट इवन हैव स्मेल, मतलब उसका कुछ स्मेल ही नहीं है। सो यू फेल्ट इट, मतलब आपने उसको क्या किया, आपने उसको फील किया, मतलब आपने कैसे फील किया, विद योर नोज यू फेल्ट दैट one flower has a very sweet smell and another one doesn't even have a smell। तो इस तरह से आपने उसे क्या फील किया, आपने किससे फील किया, नोज से फील किया, एंड नोज से कैसे फील किया, बिकॉज द नोज इज अ सेंस organ, so that is why you felt it, okay, nose is the sense organ, so you felt it, मतलब आपने उसको feel किया, felt it का मतलब ही होगा आपने उसको feel किया कि वो कैसा है, you just did that how these two things are different to each other, okay, like I have given to you 1 cold coffee and 1 hot coffee and you taste, first of all you touched it, ठीक है, आपने जैसे मैंने आपको मग्स दिया, इन मग और इन कप I gave to you 2 coffees, one is of hot and one is of cold coffee, when I gave to you then first you touched the
यू टच्ड द कप, ठीक है, आपने पहले एक कप को टच किया. देन विद विच थिंग यू टच्ड विद योर स्किन, ठीक है, आपका ये जो स्किन है विद दैट यू फर्स्ट ऑफ ऑल टच्ड इट. एंड व्हेन यू टच्ड इट, जब आपने उसे टच किया, सो विद योर स्किन, आपकी इस स्किन से आपको पता चलता है दैट द थिंग इज हॉट और कोल्ड. उससे आपको पता चला दैट द थिंग इज हॉट और कोल्ड, मतलब आपके स्किन से, ठीक है. वाई विद योर स्किन यू गॉट टू नो दिस, बिकॉज स्किन इज द सेंस ऑर्गन. स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है. सो दैट इज वाई यू गॉट टू नो दैट दिस कॉफी इज हॉट और दिस वन इज कोल्ड. देन सेकेंडली व्हेन यू टेस्टेड इट, जब आपने उसको ड्रिंक किया, व्हेन यू टेस्टेड इट, आपने उसको टेस्ट किया, देन यू फेल्ट दैट इज इट स्वीट, इज इट मीडियम इन स्वीट, है ना, दैट यू फेल्ट कि वो अच्छा मीठा है, कम मीठा है, और विदाउट शुगर इज इट. सो दैट यू फेल्ट विद द हेल्प ऑफ योर टंग, आपने उसे अपने टंग के हेल्प से उसका टेस्ट लिया, ठीक है. एंड विद योर आईज you saw that how these two coffees are looking different, ठीक है, आपने उन दोनों कॉफ़ी मग्स को देखकर जज किया that how they are looking. सो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सभी के थ्रू वी आर जजिंग द थिंग्स, हम उन सब चीज़ को फील करते हैं, हम देखते हैं, एंड वी आर जजिंग इट हाउ द थिंग्स आर गुड फॉर अस और नॉट, ठीक है. तो इस तरह से हमारे सेंस ऑर्गन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेंस ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज हमारी डेली बेसिक्स की जो सारी चीज़ें होती हैं, हम उन सबको देखकर जज करते हैं दैट दिस थिंग एम आई लाइकिंग इट और नॉट, इज इट गुड फॉर मी और नॉट, है ना. दीज वी आर डूइंग इट बाय फीलिंग इट बाय दीज सेंस ऑर्गन्स, ठीक है. These are called sense organ, ठीक है. Once again I'm reading it. Eyes, ears, nose, tongue and skin are the body parts that help to feel the world around us. ये body parts जो हैं हमारी help करते हैं हमारे surroundings को feel करने में, okay. These are called sense organs, ठीक है. And one more thing, जैसे अभी क्या weather आ रहा है, so that is कोल्ड, है ना, कोल्ड वेदर है अभी, एंड इट इज़ विंटर सीजन, ठीक है. इन दिस विंटर सीजन वेदर इज़ कोल्ड. सो हाउ यू आर फीलिंग इट, आपको ये फील कैसे हो रहा है दैट दिस इज़ द विंटर, दिस इज़ कोल्ड वेदर, हाउ यू आर फीलिंग इट, बाय योर स्किन यू आर फीलिंग वेदर इट इज़ कोल्ड और नॉट, ठीक है. नाउ नेक्स्ट हियर यू कैन सी आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स. आइज़ हमें किस चीज़ में हेल्प करती हैं, आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स, टू सी थिंग्स. सी करना मतलब क्या होता है, देखना. सो आइज़ हेल्प अस टू सी थिंग्स. आइज़ हमारे किस चीज़ में हेल्प करती हैं, दे हेल्प अस टू सी थिंग्स, वो चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं. सो CSEE, सी का मीन्स होता है देखना. एंड वन मोर वर्ड इज SEAC, है ना. तो उस सी का मीन्स होता है द ओशन, ओके. नाउ नेक्स्ट इज हियर ईयर्स, EARS, ईयर्स. ईयर्स हेल्प अस टू हियर, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, HEAR, हियर. हियर मीन्स होता है सुनना, हियर मीन्स क्या होता है, सुनना. सो ईयर्स हेल्प अस टू हियर, मतलब वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ईयर्स हमें सुनने में हेल्प करते हैं. सो ईयर्स हेल्प अस टू हियर. नाउ नेक्स्ट यू विल सी टंग, TONGUE, टंग. हम इसे क्या प्रोनाउंस करते हैं, वी कॉल इट टंग. सो टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट, टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट. टंग हमारा हेल्प करता है टेस्ट करने में. लाइक यू आर ईटिंग अ चॉकलेट and afterwards you are eating anything else like chips. So we have na Lays and Uncle chips and many more. So when you are eating these two things, so you are doing differentiation, मतलब आप उन दोनों को टेस्ट करके अलग करते हो, वेदर इट इज़ स्वीट और वेदर इट इज़ सॉल्टी. मतलब कोई जो चीज़ है वो मीठा है या वो सॉल्टी है, इसे आपने कैसे रिकग्नाइज किया, कैसे पहचाना, बाय द हेल्प ऑफ योर टंग. अपने टंग का हेल्प से आपने इसको रिकग्नाइज किया, आपने इसको पहचाना, द वेदर इट इज़ स्वीट, सॉल्टी, सॉर और बिटर, ठीक है. Now next is nose helps us to smell.
नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, नोज किस चीज़ में हेल्प करती है, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, स्मेल करना मीन्स जैसे आप किसी चीज़ को सूंघते हो, व्हेन यू टेक इन योर ब्रीथ, जब आप ब्रीथ लेते हो, जब आप सांस लेते हो, दैट टाइम यू smell it, that time you are smelling it whether the smell is good or the bad. Okay, understood? Now next we have in the next page, here we have in next page skin, skin, skin. Skin helps us to feel and touch, skin helps us to feel and touch. skin किस चीज़ में हेल्प करती है, skin हेल्प करती है फील करने में and touch, ठीक है, वट एवर यू आर कीपिंग इन योर हैंड, ठीक है, जब जो भी चीज़ आप अपने हैंड में लिए हुए हो उसे आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टचिंग इट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टचिंग इट, आप उसको टच किया हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर स्किन. ये जो है दिस अपर पार्ट ऑफ आर बॉडी पार्ट इज कॉल्ड स्किन, इसको हम क्या बुलाते हैं, स्किन, ठीक है. दिस ऑल इज कॉल्ड स्किन, दिस कवर ऑफ आर बॉडी, दिस इज स्किन. तो इससे आप पहले किसी चीज़ को टच करते हो, ठीक है, एंड देन यू आर फीलिंग हाउ द थिंग्स आर, जैसे something if it is rough or something whether it is smooth, that is you are feeling by the help of your skin. तो आप अपने skin से उसको जज करते हो. Okay, understood? Now here you can see this in these two images. So here the girl is trying to touch, वो उसको touch कर रही है, okay, and in this next one he is also feeling it, whether it is soft, whether it is hard, how the things are, these all we feel with our skin. Now here I am finishing my this today's video, and here the lesson also I am finishing, and next part we will do in our next video, ठीक है, मतलब हम next class में आगे का part complete करेंगे. So till then all of you take care of yourself, and I'm sorry for this background sound because the construction work is going on, so that is why in the background there was some disturbance. So please don't mind it, and try to ignore and focus on your study. Okay, so here I'm finishing it. Take care of yourself everyone. Bye bye.